Welcome back once again. And today I Shivani going to discuss about models. Okay, so let's begin. Models. Read and enjoy this poem. This is how we wash our clothes. So let's read this poem. This is how we can wash our clothes. Rub a dub, dub rub a dub dub. We could get them clean and white. Rub a dub dub, rub a dub dub. This is how we may hang them out. Flip pitty flap. We might see them blowing in the wind. Flip pitty flap. This is how we should iron them flat, smooth as can be, too hot must not be. We ought to wear clean clothes to make us look like gentle folks. So just observe the highlight words. Okay. So can, could, may, might, should, can be, must, ought to. These words are known as models. Okay. Now, models are helping verbs. You must be thinking, what is modal verbs? As you have read, is, am, are, was, were, same as may, might, could, can. These are helping words. Okay. Or auxiliary verbs that express the mood of the speaker or listeners. Example, we must water the plants every day. Could you please shift to the other side? Models do not change form. There is no plural form or participle form of models, right? If you are saying you should, you should going, then this is wrong. Okay, this is incorrect. ठीक है, तो जो मॉडल होते हैं उसके साथ जो वर्ब आते हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. लाइक यू, you must went. This is again incorrect. Okay, so this is incorrect. तो जो मॉडल होते हैं वो चेंज, उनके जो फॉर्म होते हैं वो चेंज नहीं होते, ना सिंगुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग और ना ही प्लूरल फॉर्म के अकॉर्डिंग. और participle form or models. Fine. Now can. Where do we use can? Can is used to talk about possibility and ability. It is also used to make request and ask for or give permission. ठीक है, तो can का यूज जो होता है वो संभावनाओं को बताने और योग्यताओं को बताने के लिए किया जाता है. Now just observe the examples. She can drive a car. This sentence shows her ability that she can drive. ये उसकी योग्यता को दिखा रहा है कि वो एक कार चला सकती है. You can go to play outside after finishing your homework. It is possibility, right? Possibility is there कि अगर तुम अपना काम खत्म करते हो तो तुम बाहर जाकर खेल सकते हो. Can I come for shopping with you? This is permission. Okay. Notes. Normally we use can for the present. ठीक है, present के लिए हम can का यूज करते हैं, बट इट इज पॉसिबल टू यूज can when we make decision is present to show future ability. ठीक है, फ्यूचर एबिलिटी को शो करने के लिए भी हम can का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी विद माई होमवर्क? ये प्रेजेंट की बात बता रहे हैं कि आप मेरी मदद करेंगे. अब कैसे can फ्यूचर को भी शो करता है? लेट्स फाइंड आउट. सॉरी, आई एम बिजी टुडे बट आई कैन हेल्प यू टुमारो. आज तो मैं व्यस्त हूँ लेकिन मैं कल तुम्हारी मदद कर सकता हूँ. नाउ दिस कैन इज शोइंग फ्यूचर एस्पेक्ट, राइट? एग्जाम्पल्स. cannot is used to show impossibility. और बच्चों, cannot हमेशा साथ में लिखा जाता है. if you are writing like this, can इधर और not इधर, then it is wrong. Okay, so you have to just write all together. Now observe this. See, it is written, it is written all together. There is no space between can and not. So you have to just keep in your mind also that you don't have to make space between can and not, right? You can't go out at this time. Okay.
मीन्स ये असंभव, इम्पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है कि इस समय आप बाहर नहीं जा सकते. दिस कांट बी डन, ये नहीं हो सकता. लेट्स टॉक अबाउट वर्कशीट 1. Alex, the alligator want you to fill in the blanks with can or cannot. One has been done for you. ओके एक आपके लिए किया जा चुका है और बाकी आपको करना है. ठीक है, तो फिलहाल इसमें मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि एक हमारे लिए हुआ है, हम सारा ही करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. कैट, कैट्स कैन क्लाइंब ट्रीज, वो पेड़ पर चढ़ सकती हैं. कैन यू ड्राइव अ कार, क्या तुम कार चला सकते हो. मीन्स ये आपकी एबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है. कैट्स कैन क्लाइंब ट्रीज, वो पेड़ों पर चढ़ जाती हैं, ये भी उनकी एबिलिटी ही है. He hurt his legs so he cannot run fast. अब ये impossibilities को दिखा रहा है. जब cannot आ जाता है तो वो impossibility, बच्चों बाई मिस्टेक यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस हो गया, आपको स्पेस नहीं रखना है. ठीक है, he hurt his legs so he cannot run fast. ठीक है, ये उसकी impossibilities को दिखा रहा है. Now we cannot go to the park, it is closed. Can we, it's again showing impossibilities. Can we go for swimming, please? So please write C capital because starts with first letter is always start with a capital letter, so you have to just keep it capital. I'm full, I cannot eat anymore. Right now, could, when do we use could? Could is used to talk about past possibility. पास्ट पॉसिबिलिटी के बारे में बताता है, जो बीत चुकी है उन संभावनाओं के बारे में और उन योग्यताओं के बारे में या फिर रिक्वेस्ट के लिए. आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 5 years old. मैं तैर सकता था या मैं तैरता था जब मैं 5 साल का था. ठीक है, अब ये पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है. कुड यू प्लीज टेल मी वेयर द बैंक इज, क्या आप मुझे बता सकते हैं, अब यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बैंक कहाँ है. ठीक है, कुड यू गिव मी योर पेन, इट्स अगेन अ रिक्वेस्ट. तो ये रिक्वेस्ट को या फिर पास्ट पॉसिबिलिटीज को शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं. कुड इज इनवेरिएबल, देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ कुड. ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि कैन का ही कुड है, नहीं, कुड का एक ही फॉर्म होता है. ठीक है, और कुड जो होता है वो पास्ट एबिलिटी को और रिक्वेस्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है. व्हेन डू वी यूज मे? मे इज मोस्ट कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, ये भी पॉसिबिलिटी को शो करता है, या फिर इट इज यूज टू सीक परमिशन, परमिशन लेने के लिए भी हम यूज करते हैं. Like you asked in the class, ma'am, may I go to the washroom? Ma'am, may I drink water? Right? So you are seeking permission or you are expressing possibilities. That's why we are using may. Like look at this example. He may come to the party if he leaves office by 7. He may come, वो आ सकता है. So possibility is there. अवी, यू मे लीव द टेबल व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर डिनर. तो आप अपना टेबल छोड़ सकते हैं. ठीक है, वो परमिशन दे रही हैं कि आप अपना टेबल छोड़ सकते हैं जब आप अपना डिनर फिनिश कर लीजिए. मे आई कम फॉर शॉपिंग विद यू, इट्स सीकिंग परमिशन. बट कैन और मे जो होते हैं दोनों ही परमिशन के लिए यूज होते हैं, लेकिन मे जो होता है वो मोर फॉर्मल होता है. फॉर्मली जब हमें टीचर से, प्रिंसिपल से या फिर किसी ऑफिसर से रिक्वेस्ट सीक करनी होती है, वी यूज मे. Now let's talk about might. Might is also commonly used to express slight possibilities. It is also used as past form of may. May का past form use होता है और slight possibility भी ये दिखाता है. Like your purse might be in the living room, ये possibility है. He said he might come if he leaves office by 7 p.m. ये भी possibility है. ठीक है, let's solve the worksheet. I tried very hard but could not reach the theater on time. ठीक है, तो यहाँ पे past के सेंस में ये यूज हो रहा है could not. ठीक है, you may visit the hospital during the evening hours. You may visit, आप visit कर सकते हैं hospital को evening hours में between 5 p.m. to 7 p.m. The sky is blue, it might rain tonight. So possibility is there, slight possibility is there. Okay, so the word might is there. I may get leave on Friday. ठीक है, तो यहाँ भी possibility है. Ravi may go with you to the movie if he is free. वो तुम्हारे साथ जा सकता है अगर वो फ्री होता है तो. My sister could sing from the age of 5. वो 5 साल की ही एज से गा सकती थी. Should is most commonly used to make recommendation or give advice. Should can also be used to express obligation as well as expectation. Examples: when you go to the Berlin, you should visit the palaces in Potsdam.
ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन है कि जब आप बर्लिन जाएंगे तो यू शुड विजिट, आपको जाना चाहिए। ये रिकमेंडेशन है कि आपको जाना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको कोई बोले कि अगर आप कैंट एरिया में जा रहे हैं तो आपको आर्मी पब्लिक स्कूल जाना चाहिए, अब ये आपके ऊपर है भाई कि आप उसका रिकमेंडेशन लेंगे या नहीं लेंगे। यू शुड फोकस मोर ऑन योर फैमिली एंड लेस ऑन वर्क, ये एडवाइस है कि तुम्हें ज़्यादा परिवार पर ध्यान देना चाहिए, काम पर कम। तो आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगे आप वो करिए। यू शुड हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय नाउ, यू न्यू योर फ्रेंड्स वर कमिंग, आपको अपना काम अब तक खत्म कर लेना चाहिए था क्योंकि आप जान रहे हैं कि आपके दोस्त आने वाले थे, राइट? सो दिस इज ऑब्लिगेशन। मस्ट, मस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस सर्टिनिटी, जब सर्टिनिटी की बात आ जाए, निश्चितता का बोध होने लगे, नेसेसिटी की बात होने लगे, आवश्यकता की, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन हो या फिर प्रोहिबिशन हो, तो वहां पर हम मस्ट का यूज करते हैं। दिस मस्ट बी द राइट एड्रेस, राइट? सो देयर इज सर्टेनिटी की यही must pass an entrance examination to study at this school. This is necessity कि अगर आपको इस स्कूल में एंट्रेंस लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना ही पड़ेगा। यू मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी। यू मस्ट टेक सम मेडिसिन फॉर दैट कफ, ये स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आपको कुछ दवाइयाँ लेनी चाहिए जो कफ आपको हुआ है उसके लिए। जेनी, यू मस्ट नॉट प्ले इन द स्ट्रीट, दिस इज प्रोहिबिशन, मना किया जा रहा है कि आपको नहीं खेलना चाहिए, ठीक है? Okay, now Penny the penguin wants to use should not, must not. To complete the following sentences, one has been done for you, but कोई example नहीं हुआ है. We will do all. Okay, so we should be polite to all. ये क्या है? ये should मतलब ये हो गया हमारा recommendation है ये कि हमें सभी के लिए क्या होना चाहिए? polite होना चाहिए. Children must not be allowed to play with smartphone. ये एकदम strong prohibition है कि बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन के साथ नहीं खेलेंगे. You should submit the examination fees. Okay? You should submit the examination fees on time. तो आपको जमा कर देना चाहिए टाइम पर, ये आपको भी एक रिकमेंडेशन कह सकते हो या एडवाइस है, राइट? ओके, नेक्स्ट इज वी मस्ट ऑलवेज यू ओबे ट्रैफिक रूल्स, ये हमारा जो है नेसेसिटी है या स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आप कह सकते हैं कि हमें फॉलो करना चाहिए, है ना? एवरीवन everyone must try and avoid using plastic bag. तो ये आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि हमें जो है मस्ट ट्राई, ज़रूर ट्राई करना चाहिए कि हम प्लास्टिक बैग यूज़ ना करें. नो वन शुड एवर प्ले, अब यहाँ पर एक सुझाव है, एडवाइस है कि हमें शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना चाहिए. What will happen if you keep postponing your work? अगर आप अपने काम को टालते जाएंगे तो क्या होगा? The work will keep piling, वो ढेर बनता जाएगा, and then we won't have enough time to complete them. So children, thank you so much for watching. Bye.